हाय चिल्ड्रन, आज रिवाइज करेंगे लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9। सबसे पहले कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। Two angles are said to be complementary. The sum of their measure is 90. Let me take an example. 40 and 50. Sum of 40 and 50 is 90, so they are complementary angles. Supplementary angles, the sum of their measure is 180. Let me take an example. 150 and 30, their sum is 180, so they are complementary angles. Linear pair of angles adjacent to adjacent angles. Adjacent angles कौन होते हैं? जिनका vertex same हो और उनकी एक आर्म कॉमन हो। ठीक है, so these two are adjacent angles, and if they the non-common arms, the non-common arms form a straight line, then they are said to be a linear pair of angles. ये नॉन कॉमन आर्म्स का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कॉमन आर्म हैज टू बी इन द मिडल. ओके, देन वी हैव सम अदर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. लेट्स डिस्कस दोस क्विकली. जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल है, so how many angles are formed? We have 8 angles are formed. Let me number them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब यहाँ पे काफी तरीके के एंगल्स फॉर्म होते हैं. पहला टाइप आता है हमारा को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स कौन होते हैं? Which are on the same side of the transversal, like here 4 and 5, 3 and 6. And we have a property कि को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है. Angle 3 plus angle 6 is also 180. Then we have another type of angles, that is alternate angles. Alternate angles. ये सीधा Z या उल्टा Z बनाते हैं. Okay, so who are alternate here? 4, 6. You can see it's making a Z like this. So one pair is 4 and 6 and the other pair is 3 and 5. और property क्या होती है इनकी कि they are equal. Alternate angles are equal. So rather than equal, instead of and, I can write equal to. Angle 4 is equal to angle 6 and angle 3 is equal to angle 5. Another I have corresponding angles. Corresponding angles, third category is corresponding angles. Corresponding angles कौन से होते हैं? जिनकी position same होती है. Same position. They are also equal. So let me see who are having same position here. You can see the position of 2. Whatever the position of 2 is, it is the same position of 6. जो भी position 5 की है, वही position 1 की भी है. So who are corresponding angles here? 1 equal to 5, 2 equal to 6. Now you please tell me for 4. अगर 4 इधर है क्रॉस में नीचे लोअर लेफ्ट में, तो यहाँ पर सेम पोजीशन किसकी है? 8 की. तो 4 is equal to 8 and 3 is equal to 7. So these are few angles that we have done in this chapter. So let's discuss few MCQ questions related to it. First question. The angle which is 4 times its complement. ऐसा angle जो अपने complement का 4 time है. Okay. So let me take the angle to be x. Now it is, the question says the angle is 4 times its complement. अब complement, x का complement क्या होगा? जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 90. उनका सम होता है 90. तो अगर मुझे कोई एक एंगल दे दिया जाए, जैसे मान लो मुझे दे दिया 20, तो मुझे अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है, तो 90 माइनस 20, तो उसका कॉम्प्लीमेंट इज 70. अगर उसका सप्लीमेंट पूछा है तो सप्लीमेंट में कितना होता है सम? 180. तो 180 माइनस 20, दैट विल बी 160. तो यहाँ पर जब मुझसे कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं और मेरा एंगल मैंने यहाँ पर क्या लेट किया है? लेट एंगल बी एक्स. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज सेइंग x इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो x का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x. नाउ सॉल्व दिस प्लीज. x इज इक्वल टू 360 माइनस 4x. so 5x is equal to 360. so your x is 72.
सी हियर 72 चेक करना चाहेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. टेल मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस. 90 माइनस 72 इट विल बी 18. तो क्या ये जो मेरा ओरिजिनल एंगल था ये इसका 4 टाइम्स है? यस. सो डी पार्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट, द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. अब एंगल को अगर मैंने एक्स ले लिया तो ये कह रहे हैं इट इज इक्वल टू द सप्लीमेंट, और अभी बताया था सप्लीमेंट निकालना है तो क्या करो, 180 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो. सो 2x इज इक्वल टू 180, सो योर x इज 90. सी पार्ट. नेक्स्ट, the angle which is 4 times its complement. I think this is first question repeat, sorry. Two adjacent angles on a straight line are in the ratio 5:4. दो adjacent angles 5:4 में है. जब भी हमें रेशियो दी जाती है तो हम क्या कर लेते हैं, क्वांटिटीज को 5x एंड 4x ले लिया, तो यहाँ पर मेरे एंगल्स हो गए 5x एंड 4x. नाउ दे आर सेइंग दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर वो स्ट्रेट लाइन पर है एडजेसेंट एंगल, तो इसका मतलब उनका सम क्या होना चाहिए, उनका सम 180 होना चाहिए. सो 9x इज इक्वल टू 180, सो x इज 20. सो क्या है मेरे एंगल्स, 5 into 20 इट विल बी 100 एंड 4 into 20 इट विल बी 80. 180, दैट मीन्स ए पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, two lines PQ and RS intersect at O. If POR, that means this angle is 50 degree. Then ROQ ढूंढना है आपको, मतलब ये ढूंढना है. Obviously these are two straight lines. अब जब straight lines हैं तो ये सम कितना होगा दोनों का, 180. So मैंने अगर इसको x भी मान लिया तो 50 plus x is 180. So your x is 130. Next question. In the adjoining figure find the value of x. आप फिगर में देख रहे हो आपको यहाँ पर कैसे एंगल दिए हुए हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सो इनका सम कितना होना चाहिए, 180. सो 3x plus 20 plus 4x minus 36 is equal to 180. So that means it will be 7x minus 16 is equal to 180. 7x is equal to 196. X is equal to 28. X is equal to 28. So B part. Next question. Again same question. Straight line है. दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180. So 6x is equal to 180. So your x is 30. So C part. Next. In the figure AOC plus BOD. AOC plus BOD. इन दोनों का सम 75 है. COD बताना है. सो इन तीनों का सम, क्योंकि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180. जिसमें से कि मेरे को 1, 2 और 3 में से 1 और 3 का सम ऑलरेडी दिया हुआ है. 1 और 3 का सम कितना है, 75. और 1 plus 2 plus 3 कितना होता है, 180. स्ट्रेट लाइन. सो एंगल 2 plus 75 is equal to 180. So your angle 2 will be 180 minus 75. It will be 105. B part. Next, in this figure find the value of y. Obviously you are given three angles on a straight line. तीनों का सम फिर से 180. So it will be 10y is equal to 180. So your y is 18. B part. Next, same question. 6x plus 30 plus 4x is equal to 180. So 10x is equal to 150. So your x is 15. In the figure, B is more than 1/3 of a right angle than A. The values of A and B are. Here, B is more than 1/3 of a right angle than A. B जो है बड़ा है किससे, 1/3 of right angle, कितना, A. So I can cancel this. This will be B minus 30 is equal to A. ये तो इस स्टेटमेंट से मेरी कंक्लूजन निकल गया. और जो ये फिगर है, ये फिगर क्या कहती है, A plus B is 180. तो क्या मैं ये A की वैल्यू उठा के इसमें डाल दूं. So it will be B minus 30 plus B is equal to 180. So 2B is equal to 180 plus 30.
210. So your B will be 210 by 2, that means 105. तो B आ गया 105. तो A कितना आ जाएगा? A एक्चुअली में तो B -30 है ना, तो 105 - 30 कितना हो गया? 75. So 75 और 105 आंसर है हमारा. So it is option B. Next, the values of x and y are, हमें बताना है यहाँ x और y की वैल्यू क्या है. आप देख रहे हो कि ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, ये लीनियर पेयर बन रहा है. तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इनका सम 180 होना चाहिए. तो 180 - 50, मेरा x कितना आ गया? My x is 130. और यहाँ पर ये किस तरीके के एंगल्स हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो y इज इक्वल टू 130. तो दोनों ही 130 हैं. In this figure, PQ parallel to ST. This line is parallel to this one. NCERT का ही क्वेश्चन है ये 110 है, ये 130 है, हमें ये बीच का ढूंढना है. तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन करी थी. We are going to draw a line parallel like this. So these are co-interior angles. इनका सम 180 होता है. So this will be 70. इधर से भी ये co-interior angles है, इनका भी सम 180 होता है. So this will be 50. And this is a straight line. So 70 plus x plus 50 is equal to 180. So this will be how much? X plus 120 is equal to 180. So your x is 60 degrees. So A part. And last question for today. In this figure, the sum of angle A and angle B. ये दोनों का सम क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल्स हैं. एंड हमने एक एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी. क्या थी? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन है? D और E. सो इट विल बी D plus E, दैट मीन्स B पार्ट.